گندم کی بوائی کا وقت آ پہنچا۔ بوائی سے قبل ہی بیج کی قیمت میں اضافے سے کاشتکار پریشان، کسانوں کی بیج، کھاد، ڈیزل اور بجلی پر ریلیف کی مانگ۔ گندم کی امدادی قیمت 1700 سے زائد مقرر کرنے کی اپیل کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جنگ آئے روز کھاد کی بڑھتی قیمت سے کاشتکار کسان کہتے ہیں کہ زرعی ملک میں گندم کا بیج بھی مہنگا کر دیا گیا ہے۔ رہی صحیح کسر مہنگے ڈیزل نے پوری کر دی۔ حکومت سے بڑھتی مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فیصل آباد سے عبد الرحمان اور جنگ سے مبشر حسن نقوی۔ سب سے پہلے بات کریں گے عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان، بتائیے گا اس وقت جو خریف کی فصل ہے اس کی بوائی کے لیے جو کسان ہیں وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ یہاں پر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپیل بھی کی جا رہی ہے۔ جی بالکل، جو ہی بوائی کا وقت آن پہنچا ہے تو یہاں پر جو سرٹیفائیڈ تیلا ہے جو فی ایکڑ کے لیے لگتا ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے، 2900 روپے کا مل رہا ہے۔ اسی طرح جو کھاد ہے DAP 4000 کی ہو چکی ہے، یوریا، اسی طرح پوٹاش، تمام چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں۔ کوئی بھی چیز سستی ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کسانوں کے جو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مطالبات ان کی جانب سے یہی کیے جا رہے ہیں کہ جب گندم ان سے 1400 روپے لی جاتی ہے تو پھر جب وہ سرٹیفائیڈ بیج کی مانگ کرتے ہیں تو وہ 2900 روپے کا کیوں انہیں دیا جاتا ہے، اسی ریٹ پہ دیا جائے۔ تو اسی پر ہمارے ساتھ یہاں پر کسان موجود ہے، کسان بورڈ کے عہدیداران، ان سے بھی اسی حوالے سے ہم بات بھی کریں گے، جانیں گے بھی میں سب کیا ڈیمانڈس ہے کسانوں کی، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمان صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بات ہماری وہی پرانی کہ ہمارے مطالبات جو ہیں حکومت کے ہم پہلے بھی دے چکے ہیں۔ کسان بورڈ کی طرف سے ہم ایک چارٹر اور ڈیمانڈ پیش کر چکے ہیں حکومت کو، اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونے سے پہلے بھی ہم نے یہ اپنا چارٹر اور ڈیمانڈ پیش کیا تھا تاکہ ایوان بالا کو ہماری مشکلات اور ہمارے مسائل کا پتہ چل سکے۔ اس میں اب چونکہ گندم کی اگلے ماہ بوائی سٹارٹ ہونے والی ہے اور اس کے لیے ہم زمین کی تیاری کا کام شروع کر چکے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ نمبر ایک تو کھادوں کی بہت زیادہ قیمتیں ہو چکی ہیں۔ بلیک مارکیٹنگ ہو رہی کھادوں کی، مارکیٹ میں کھادیں دستیاب بھی نہیں ہیں۔ اب یوریا ہے، DAP ہے، پوٹاش ہے، اور جتنی بھی کھادیں ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ساری کھادوں کا ریٹ اس وقت اپنا بہت زیادہ ہے، وہ عام ذمہ دار کی پہنچ سے باہر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کھاد پوری نہیں زمین کو ڈالیں گے تو خاطر خواہ ہم پیداوار نہیں لے سکیں گے۔ اگر پیداوار نہیں لے سکیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ ہمارا حکومت سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کم از کم کھادوں پہ کنٹرول کیا جائے اور کھادیں سستی کی جائیں، اور جو پہلے ریٹس تھے آج سے 2-4 ماہ پہلے جو ریٹس تھے وہی ریٹوں پہ کھادوں کو واپس لایا جائے۔ جو بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے اور کسان کو کھادیں سستی فراہم کی جائیں۔ دوسرے نمبر پہ بات آ جاتی بیج کی۔ حکومت نے آج سے 6 ماہ پہلے سے یا 7 ماہ پہلے ہم سے گندم 1400 روپے پر من کے حساب سے ہم سے لی ہے، اور وہ گندم بھی ہماری ضبط کر لی گئی جو ہم نے اپنے سال کے استعمال کے لیے رکھی ہوتی ہے، جو اپنے ملازمین کے لیے رکھی ہوتی ہے، اور جو آئندہ فصل کے لیے بیج کے لیے رکھی ہوتی ہے۔ اب وہ بھی گندم ہمارے گھروں سے چھاپے مار کے اٹھا لی گئی، اور اب ہمارے پاس بیج کے لیے گندم ہی موجود نہیں ہے۔ ہمارا حکومت سے بھرپور مطالبہ ہے کہ جس ریٹ سے انہوں نے ہم سے گندم اٹھائی ہے اسی ریٹ پہ ہمیں بیج جو ہے فراہم کیا جائے، اور وہی ریٹ جو 2900 روپے پر بیگ یا 2950 روپے پر بیگ ہے یہ ہمیں کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہماری جو ریٹس ہیں ٹیوبل کے پر یونٹ ریٹس ہیں وہ فلیٹ ریٹ پہلے جیسے کیے جائیں۔ وہ بھی بجلی بہت مہنگی ہے۔ جو ہمارے ٹیوبل اریگیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ ذمہ دار کو سب سے بڑی پرابلم یہی ہو رہی ہے کہ اس کا بہت زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے، اور وہ اپنا سستا کیا جائے اور تاکہ ذمہ دار اپنی بوائی کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے بندوبست کر سکیں۔ جی آپ بتائیں کیا مطالبات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میاں صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے مطالبات سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں سستی کھاد مہیا کی جائے تاکہ ہم اچھی کھاد ڈالیں اور اچھی فصل لے سکیں۔ پہلے تو گورنمنٹ ہمیں سبسڈی دیتی ہے کھاد پہ، یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں۔ سبسڈی دیتی ہے، وہ ٹوکن نکلتا ہے، ہم 4000 کا تھیلا لیتے ہیں، وہ بھی بلیک میں ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم سبسڈی کے لیے ٹوکن ہم کہاں لے کے جائیں؟ ٹوکن ہمیں کوئی سبسڈی نہیں ملتی۔ جو حکومت ہمیں سبسڈی کا جھانسا دیتی ہے نا، یہی ہمیں جو 400-500 روپیہ سبسڈی دیتی ہے نا، ہمیں کھاد سستی دے۔ اور جس طرح ہمارے گھر سے گندم اٹھا کے لے گئی ہے نا گورنمنٹ، ایسے جو بلیک ڈیلر ہیں نا ان کے گوداموں سے کھاد اٹھا کے ہمیں بازار میں لائیں اور ہمیں سستی کھاد مہیا کریں تاکہ ہم
खाद डाल के अच्छी फसल ले सकें। और उसके बाद जो ये अभी जो गन्ने का सीज़न शुरू हो रहा है, ये मिलों वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई रेट्स नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। जब हम गन्ने के जो खेत हैं ना, गन्ना काटना है तो उनमें ही गंदम काश्त करनी है। अगर टाइम पे हम गंदम नहीं काश्त करेंगे तो उसकी अच्छी पैदावार नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये और काम करते हैं, ऐसे ही जो ये मिलों वाले क्रशिंग सीजन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इनके 1-2 के लाइसेंस कैंसिल करें हैं, जैसे और काम के लिए 1-2 के लाइसेंस कैंसिल करें। ठीक है अब्दुल रहमान, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। रुख करते हैं मुबशर हसन नकवी का। मुबशर हसन नकवी साहब, बताइएगा कि इस वक्त जिस तरह से काश्तकार परेशान दिखाई दे रहे हैं और गंदम का बीज भी महंगा हो चुका है, महंगे डीजल ने भी आवाम को परेशान करके रखा हुआ है, मुतालिबात क्या है इस वक्त किसानों के? धान की फसल जो है वो तकरीबन पककर तैयार हो चुकी है और चंद ही दिनों बाद इसकी कटाई का अमल शुरू हो जाएगा। काश्तकारों के लिए एक मुश्किल तरीन मरहला आने वाला है, क्योंकि उन्होंने अब गंदम की बीज की बुआई करनी है। जो गंदम का बीज उनको पहले 1200-1300 रुपए फी मन मिला करता था, अभी उसी गंदम के बीज की कीमत जो है वो 3000 रुपए फी मन से जायद हो गई है, जिस पर काश्तकार परेशान है, मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि महंगाई ने पहले ही उनकी कमर तोड़ कर रख दिया और ऐसी सूरत हाल में जब गंदम का बीज हासिल करना ही अब मुश्किल हो गया, अब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो किस तरह गंदम की फसल को जो है वो तैयार करेंगे। झंग पंजाब का वो शहर है जिसकी गंदम जो है वो मियार के हिसाब से पंजाब के पहला नंबर इसको दिया गया था, लेकिन इस साल गंदम की बुआई किस तरह करेंगे, काश्तकार परेशान है। कुछ काश्तकार हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि कितना आपका रकबा है, गंदम का बीज किस तरह मिल रहा है और किस तरह आप लोग मैनेज करेंगे, इतनी महंगाई हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आज जो हमारा धान का सीज़न है वो एंड होने वाला है, 15-20 दिन रह गए हैं। तो अब हम जो है अपना गंदम की जो है उसकी बिजाई का मौसम शुरू हो रहा है, तो उसमें जो गंदम का अपना बीज का रेट है वो 3000 रुपये से ज़ायद हो चुका है। लेकिन जो इसका इनिशियल रेट था, जो हुकूमत गवर्नमेंट जो रेट निकालती है वो ज़िम्मेदार को रेट देती है 1400-1500 रुपये। तो अब 1400-1500 से ये इंक्रीज़ करके 3200-3400 पे इसका रेट पहुँच गया है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। तो इतना जो इस दौर में इतनी महंगी बीज और उसके बाद उसकी जो बिजली के जो रेट हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो हुकूमत के लिए काफ़ी अपना हुकूमत को चाहिए कि ज़िम्मेदार को अगर वो अपना इसको सब्सिडी प्रोवाइड ज़िम्मेदार को नहीं प्रोवाइड कर सकते तो एटलीस्ट उसको जो प्राइस कंट्रोलिंग पॉलिसी है उसको बनाना चाहिए और उसको जितना फैसिलिटेट हो सके ज़िम्मेदार को करना चाहिए, ताकि ज़िम्मेदार खुशहाल होगा तो आपका जो मुल्क है हमारा, वैसे मुल्क जो है एक ज़रई मुल्क है, उसकी जो 70% जो हमारी अपना है पैदावार वो ज़राअत पे निसार करती है। गवर्नमेंट की जो फेलियर है वो सबसे बड़ी फेलियर ये है कि जब इसका रेट 1400-1500 रुपये था तो हमने अपनी जो है गंदम वो एक्सपोर्ट कर दी थी, लेकिन अब जब उसके रेट बढ़ गए हैं 3000-3200 हो गए हैं, अब महंगे दामों पे डबल रेट्स पे अब हम अपनी जो गंदम है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जो लॉस है, जब इसकी गंदम तैयार होगी तो इसका जो गवर्नमेंट रेट देगी वो 1400-1500 देगी, लेकिन ये जो रेट का इतना गैप है इसका जो नुकसान है वो सरासर जिम्मेदार को होगा। बिल्कुल, काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब करे जिससे काश्तकारों को जो है वो फायदा हो। आप बताइएगा कि गंदम का बीज तो महंगा मिल रहा है, इसके साथ साथ जो खाद की कीमत है, पेट्रोल है, डीजल है, किस तरह अपने खर्च पूरे करेंगे आप? देखें जी, अपना 1400 रुपये में यूरिया पहले मिल रही थी, तो अब यूरिया हो गई 1800 रुपये में। तो डीएपी का जो रेट था वो पहले 3400 रुपये था, अब 3800 रुपये, अब 4000 के तकरीबन नज़दीक आ गया। तो हुकूमत को चाहिए कि हमें जो है सब्सिडी भी दे और किसान का ख्याल रखे। डीजल भी महंगा है, बिजली भी महंगी है, हर चीज़ महंगी मिल रही है, तो किसान जाएगा तो जाएगा कहाँ? अच्छा, बिल्कुल, काश्तकारों का ये कहना है कि उनको महंगी खाद मिल रही है और यहाँ पर एक अहम चीज जो सामने आई है कि काश्तकारों का ये कहना है कि उनको मिलने वाली खाद और स्प्रे जो है वो भी गैर मयारी है, खाद और स्प्रे भी है वो भी गैर मयारी है। ठीक है, मुबशर हसन नकवी आप हमारे साथ मौजूद रहिए। रुख करेंगे टोबा का, जहां पर गंदम की बुवाई का मौसम आन पहुंचा है और बीज महंगा, खाद महंगी होने पर काश्तकार हुकूमत से नाला है। टोबा टेक सिंह के देहाती इलाके में इस वक्त ब्यूरो चीफ सिटी 41 वकार घुमन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। वकार घुमन, बताइएगा, इस वक्त बहुत से मसाइल हमें दिखाई दे रहे हैं काश्तकारों को जो दरपेश हैं, क्या क्या मसाइल इस वक्त वहां पर टोबा के काश्तकार फेस कर रहे हैं? बिल्कुल, नवंबर में गंदम की बुवाई शुरू हो जाएगी। खरीफ की एक अहम फसल है, लेकिन किसान काफ़ी परेशान हैं। किसानों का ये कहना है कि खाद भी महंगी
है, बिजली भी महंगी है, जो डीजल है वो भी महंगा है और बीज मिल भी नहीं रहे, अगर मिल रहे हैं तो वो भी महंगे हैं। किसानों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस वक्त हम टोबा टेक सिंह के देहाती इलाके में मौजूद हैं, किसानों से भी बात करते हैं, काश्तकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा जी, गंदम बीजन का मौसम आ गया है, की मुश्किल पेश आती है, बीज मिलते ने पे, खाद सस्ती है पिछले साल नालों, कोई हुकूमत कोई ਤੁਹਾਨੂੰ कोई फायदा दे रही है? महंगी नहीं जी, नहीं कोई फायदा नहीं देन दी, नुकसान देन दी, लभदी नहीं, धक्के खाने पैंदे, कोई चीज़ नहीं लभदी, ना भी लभदा ना खाद लभदी है। मौसम कणक दा आया बीजन दा। ਤੇ ਟਿਊਬਲ ਵਾਸਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? महंगा जी महंगा, कोई चीज़ नहीं मिलती जी, तेल भी महंगा मिल रहा, ट्यूबल कद ना चलाने। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਵੋਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇ? हुकूमत नूं ये चाहिए भी कोई राहत करे, कोई गुंजाइश देवे, ये कोई गुंजाइश नहीं देन दी। बिल्कुल जी, किसान ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत किसानों के लिए रायतें देने के नाम पर आई थी, लेकिन किसानों को कोई फ़ायदा नहीं दिया जा रहा। कुछ और भी यहाँ पर खेतों में काम करने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कोई फ़ायदा मिला है हुकूमत की तरफ से किसानों को आज तक? आप लोगों को कोई चीज़ सस्ती मिली है? नो सर, कोई नहीं, बिल्कुल ज़्यादती हो रही है किसानों के साथ। ये जो खादें बढ़ाई गई हैं, इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और गंदम जो है वो पिछले साल 2400 को मिले था बीज, अभी 2700 का मिल रहा है अभी। इस वजह से तो हमने गंदम भी नहीं। गुज़श्ता एक साल के दौरान जो बीज हैं उनमें भी तकरीबन इनके मुताबिक 1000 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। जो खाद है फी बोरी, उसमें भी जो सब्सिडी दी जाती थी वो भी इंतहाई कम है और उसमें भी काफ़ी कीमत बढ़ चुकी है। किसान बड़े परेशान हैं और ये हुकूमत से काफ़ी कीमत बढ़ चुकी है, किसान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चनियोट से बाबर मुनीर जी। बाबर मुनीर, बताइएगा इस वक्त चनियोट की क्या सूरत हाल है? किसान वावेला करते दिखाई दे रहे हैं, मसाइल के अंबार का। खरीफ की फसल है और उसकी बुवाई का वक्त जो है वो आन पहुंचा। जिला चिन्नौट की अगर बात की जाए तो जिला भर में 2,80,000 से ज़्यादा एकड़ रकबा पर गंदम की फसल काश्त की जानी है, लेकिन काश्तकार भाई जो है वो इसकी बुवाई का वक्त जो है वो सर पर आन पहुंचा है और इसके साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई से वो खासे परेशान नजर आते हैं। डीजल की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं, खादों और बीज की कीमतें जो हैं वो आए रोज़ बढ़ रही हैं, जिससे काश्तकार भाई खासे परेशान नजर आते हैं। ज़मींदार भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे? फसलों का एक तरफ तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात है कि फसलों की आपको माकूल मुआवजा नहीं मिलता, फिर उसके बाद कीमतें भी बढ़ रही हैं खाद और बीजों की, और इसके साथ साथ बाकी भी मसाइल हैं, जिस तरह डीजल का रेट बढ़ रहा है। क्या मुतालबात हैं आपके, क्या कहेंगे? गंदम जो है साड़ी अहम ग़िज़ाई फसल है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी इस पे काम नहीं कर रही। अगर इस पे काम ना किया गया तो ज़मींदार जो है वो गंदम काश्त नहीं कर रहा, सिर्फ अपने लिए काश्त करेगा और मुल्की गंदम का बुरान पैदा हो जाएगा। इसीलिए इस पिछले साल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, उससे आज देख लें कि 3500 की बोरी थी, अब DAP की 4000 की बोरी है। महंगाई जो है, तेल की कीमत में इजाफा हुआ है, महंगाई जो आसमानों को छू रही है, रेट ये दे नहीं रहा फसल को। इसलिए ये जो अपनी ज़राअत है वो पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की सीध रखती है, ये जो कमज़ोर हो रही है। अगर कणक का, गंदम का रेट फिक्स ना हुआ मकूल, तो ये काश्त ज़मींदार नहीं करेंगे और इससे मुल्क में ग़िज़ाई बुरान पैदा होगा। अच्छा चौधरी साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह ओपन मार्केट में अभी से 2500 रुपये तक गंदम का रेट जो है वो पहुंच गया, फिर अगले साल भी गंदम की फसल जो है वो उसकी काश्त की जानी है, क्या समझते हैं रेट क्यों ओपन मार्केट में बढ़ रहा है? जब ज़मींदार का रेट गंदम का मकूल फिक्स नहीं मिलता ना उसको, इसलिए वो गंदम कम काश्त होती है, इसलिए बाजार मार्केट में गंदम का रेट ज़्यादा हो जाता है, जिससे वो आम आदमी की पहुँच से दूर हो जाती है। बिल्कुल जी, गंदम का अभी भी जो है वो रेट बढ़ रहा है और इसके साथ साथ ओपन मार्केट में मुबैना तौर पर ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। वहीं पर गंदम की बुवाई का एक दफ़ा फिर जो है वो वक्त जो है वो शुरू होने जा रहा है। ज़िला भर में 2,80,000 से ज़्यादा एकड़ रकबा पर ये काश्त जो है वो की जानी है। ताहम काश्तकार भाई बढ़ती हुई महंगाई और जो खादों और बीजों की कीमतें हैं, डीजल जो है वो महंगा उन्हें मिल रहा है और इसके साथ साथ बिजली की जो कीमतें जो आए रोज़ यूनिट बढ़ाए जा रहे हैं, यूनिट का रेट बढ़ाया जा रहा है, उस हवाले से वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि अगर ज़राअत जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, अगर उसे बचाना है, दहाई के जो दाने पर पहुंची हुई है, तो उसके लिए काश्तकार भाइयों को मुमकिन काश्तकार भाइयों को लिए मुमकिन रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद थे, वकार घुमन हमारे साथ मौजूद थे और फैसलाबाद से अब्दुल रहमान और जंग से हमारे साथ मौजूद थे मुबशर हसन नकवी। तमाम का बहुत शुक्रिया। इस वक्त काश्तकारों के मसाइल जो है वो बताए जा रहे हैं।
अपोजिशन का गुजरांवाला में जलसा, फैसलाबाद से भी रहनुमाओं और कारकुनान शरीक। पीपल्स पार्टी के सिटी सदर राना नईम दस्तगीर के हमरा भी जियाले जाएंगे। बोले हम डरने वाले नहीं, हर सूरत जलसा गाह पहुंचेंगे। अपोजिशन का गुजरांवाला में जलसा, फैसलाबाद से भी रहनुमा और कारकुनान शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के सिटी सदर राना नईम दस्तगीर भी हमरा हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है उमैर असमत। जी उमैर, बताइएगा जलसे की तैयारियां कहां तक पहुंची? जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन जमातें कल गुजरांवाला में अपना पावर शो करेंगी। इस हवाले से मेरे साथ मजीद बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सिटी के सदर राना नईम दस्तगीर साहब मौजूद हैं कि अभी तक पीपल्स पार्टी और इनकी इत्तेहादी जमातों की जानिब से फैसलाबाद से क्या तैयारियां की गई हैं उस जलसे में शमूलियत के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए APC में जो फैसले किए गए उनके मुताबिक पहला जलसा गुजरांवाला में कल हो रहा है। उस सिलसिले में पुरअमन तौर पर हमने अपने वर्कर्स के साथ उसमें शिरकत करना है, मगर हुकूमती हथकंडे हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अमन का दामन छोड़ दें। जो मैंने ट्रांसपोर्ट बुक करवाई थी उसको भी सेक्रेटरी RT ने जबरन कैंसलेशन के लिए दबाव डाला है कि वो ट्रांसपोर्ट ना दी जाए, मगर हम जाएंगे, ट्रांसपोर्ट भी लेंगे। हमारे वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है, मेरी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और नज़रबंद करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, कंटेनर से रास्ते बंद किए जा रहे हैं, दीगर ज़राए से जाने के लिए भी हम पर कड़ी निगरानी की जा रही है कि वहाँ पहुँच ना पाए, मगर इंशाअल्लाह ताला हम अवामी मुफाद और जमहूरियत की बहाली के लिए वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। अच्छा, हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से तो कहा जा रहा है कि इजाज़त, जलसे की इजाज़त जो है वो दे दी गई है और किसी किस्म की जो रुकावट है वो नहीं डाली जाएगी। आप कंटेनर देखें, मोटरवे के ऊपर कंटेनर देखें, GT रोड के ऊपर कंटेनर देखें, हमारे घरों में पड़ने वाले छापे देखें, तो उनसे इनके इस झूठ का और इस जो ये कर रहे हैं हमारे साथ जुल्म आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल, राना नईम दस्तगीर का कहना है कि कल सियासी कारकुनों की, तमाम अपोजिशन जमातों के सियासी कारकुनों की एक बड़ी तादाद गुजरांवाला में पहुंचेगी। इस हवाले से जो हुकूमती मशीनरी है वो कोशिश कर रही है कि उनको रोका जाए, मगर तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए ये लोग गुजरांवाला जलसा में पहुंचेंगे और इसे कामयाब बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमैर असमत, हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद की 139 बड़े कारोबारी यूनिट्स जिनकी सालाना सेल 1 अरब रुपए से जायद थी, इन यूनिट्स के टैक्स में मामलात यानी LTO अब फैसलाबाद के बजाय मुल्तान से डील होंगे, जिस पर फैसलाबाद ऐवान सनअत व तजारत का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं फैसलाबाद वहां पर ऐवान सदर में ये बात होगी। फैसलाबाद के 139 बड़े कारोबारी यूनिट्स जिनकी सालाना सेल 1 अरब रुपए से जायद थी, इन यूनिट्स के टैक्स मामलात यानी LTO अब फैसलाबाद की बजाय मुल्तान से डील होंगे, जिस पर फैसलाबाद ऐवान सनअत व तजारत का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा शहराज भट्ट से। जी शहराज, अपडेट कीजिएगा। मुल्तान में जो LTO यानी लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस का क़याम किया गया है, उसमें फैसलाबाद के भी यूनिट्स की बड़ी तादाद मौजूद होगी। इसी हवाले से इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या इसके ऊपर रिएक्शन जो है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से क्या हो सकता है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इंजीनियर एहतशाम जावेद मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। एहतशाम भाई, हमने देखा ये गवर्नमेंट की तरफ से फैसला किया गया कि मुल्तान में अब सारा टैक्स पेयर्स को जो है, लार्ज टैक्स पेयर्स को शिफ्ट किया जा रहा है। सो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? इस पर ताजरों का और बड़े यूनिट्स का रद्द अमल क्या हो सकता है? इस पर सबसे ज़्यादा जो पॉपअप होता है माइंड में सवाल, वो यही होता है कि फैसलाबाद चैम्बर से जाके पता करें कि क्या हो सकता है, मुमकिन तौर पर क्या रिएक्शन होगा, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे पहले बताया इज़ बेसिकली हब ऑफ ऑल बिजनेस कम्युनिटीज़, तो उसके लिए हमने फौरी तौर के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को आज लिख दिया है। आई जस्ट वांट टू हेल्ड अ मीटिंग अपॉन, हम अपनी मीटिंग्स करेंगे, उसके अंदर हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि ये इसके नो डाउट ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मूव है गवर्नमेंट की कि उन्होंने टैक्स पेयर्स और स्पेसिफिकली वो टैक्स पेयर जो लार्ज टैक्स पेयर हैं फैसलाबाद के, उनको डील करने के लिए मुल्तान में एक LTO का क़याम वजूद में आया।
इसमें कहीं ना कहीं ये बात मेरा ख्याल है हमें लाजमी करनी चाहिए या है कि क्योंकि वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिवली एक नया सूबा बनने जा रहा है तो शायद उसको भी हेल्प आउट करें ये सारी चीज़ें। लेकिन अगेन हमें अपने बिजनेसेस को, बिजनेस कम्युनिटी को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा हमेशा से नारा रहा है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से हमने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को बुलाया है। उनकी इनपुट आने तक चेंबर अपना ये जौन सा है व्यू या चेंबर अपना कोई भी रिएक्शन नहीं दे सकता। हम तमाम स्टेक होल्डर्स के मशवरे के साथ एक मुश्तरका लाहेअमल बनाएंगे जो पूरे फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी का लाहेअमल होगा और उसके मुताबिक इंशाल्लाह इस पर रिएक्ट करेंगे। यानी कि ये पॉजिटिव मूव है। उसके मुताबिक इंशाल्लाह इस पर काम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में किताबें कम पड़ गईं। अक्सर स्कूलों को 5वीं और 7वीं जमात समेत अक्सर किताबें की कमी का सामना है। फैसलाबाद के वेयर हाउसेस से भी स्टॉक खत्म हो गया। महकमा तालीम फैसलाबाद ने पंजाब हुकूमत से मजीद किताबों की डिमांड कर दी है। आपको बताएं कि फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में किताबें कम पड़ गईं। अक्सर स्कूलों को 5वीं और 7वीं जमात समेत अक्सर किताबों की कमी का सामना है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर अशरफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों के लिए भिजवाई गई मुफ्त किताबें कम पड़ गई हैं। अक्सर स्कूल सरबराहान को ये शिकायत है कि उनके बच्चों को अभी तक मुकम्मल किताबें नहीं मिल सकें। इस हवाले से तमाम जो वेयर हाउसेज हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि अगर उनके वेयर हाउस में कोई किताब मौजूद नहीं है तो दूसरे वेयर हाउस से वो पता करवाएं और अगर ज़िला के अंदर ही उनको किताबें मिल जाती हैं तो किसी दूसरे वेयर हाउस से उनको मंगवा कर असातिज़ा की, स्कूल सरबराहान की और बच्चों की डिमांड को पूरा करें। इस हवाले से अक्सर जो असातिज़ा हैं उनको ये शिकायत है कि 5वीं और 7वीं की कुछ किताबें अभी तक नहीं मिल सकी हैं। बाकी किताबें मिल चुकी हैं लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें 7th की अरबी की किताब शामिल है। इसी तरह 5वीं का एक सेट जो है वो नहीं मिल रहा, जबकि जमात नहम का जो कंप्यूटर है उसकी किताब भी शॉर्ट है। इस हवाले से हेड्स की तरफ से मुतलका वेयर हाउसेज को, अपने मुतलका डीओज को एप्लीकेशन भी भिजवाई गई हैं डिमांड के हवाले से। और इस हवाले से सीओ एजुकेशन अहमद सियान का कहना है कि चूंकि अक्सर प्राइवेट सेक्टर से बच्चे अब गवर्नमेंट स्कूल्स का रुख कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस के बायस फीसों के इश्यूज भी थे, तो अब जो तादाद बढ़ रही है क्योंकि किताबें फराहम जो की जाती हैं हुकूमत की तरफ से वो गुज़श्ता साल की तादाद की निस्बत की जाती हैं। तो ऐसी क्लासेस जहां पर बच्चों का दाखिला पिछले सालों से ज़्यादा हुआ है वहां पर जो बच्चों की किताबों की नीड है उसको पूरा करने के लिए मजीद डिमांड पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है। जैसे ही मजीद किताबें आएंगी तो वो बच्चों को फराहम कर दी जाएंगी। लेकिन इस वक्त फैसलाबाद के अक्सर स्कूल ऐसे हैं बच्चों को फराहम कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद थे। लालिया को तहसील बने 11 साल हो गए, सहूलियात का नामो निशान तक नहीं है। एसी ऑफिस समेत तमाम दफातर वॉशरूम्स और पानी की सहूलत से महरूम हैं। मार्केट्स, पार्क्स, पब्लिक पॉइंट्स पर भी वॉशरूम्स, पानी की सहूलत मुयस्सर नहीं। दफातर में आने वाले साइलिन खुसूसन खवातीन अजियत में मुब्तला हैं। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अजमत बलोच से। जी अजमत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लालिया को तहसील बने 11 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जितनी भी यहाँ पर दफातर हैं और पब्लिक पॉइंट्स हैं वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स और इवन जो पीने का पानी है उसकी सहूलत नहीं दी जा सकी और ये इंतजामिया की बहुत बड़ी गफलत और नाअहली है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लालिया की एक समाजी शख्सियत चौधरी अब्दुल गफार जाट। मजीद उन्हीं से जानते हैं कि वो इस मसले के बारे में क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से सेहत का बुनियादी जुज़ है ये बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तहसील लालिया को कायम हुए 10-11 साल हो चुके हैं, लेकिन तहसील पूरी के अंदर ना को पीने के पानी का इंतज़ाम है और ना को टॉयलेट का। गर्मियों में और सर्दियों में सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं अपने मसाइल के हल के लिए। उनके लिए ना टॉयलेट का कोई बंदोबस्त है और ना पीने के पानी के लिए, जिसकी वजह से सख्त बूढ़े, बच्चे और नौजवान और बुज़ुर्गों को भी ख़ास तौर पर सख्त तकलीफ़ का सामना है। इसलिए मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि इस मसले को फिलफौर हल करें। जी बिल्कुल, कहा जा रहा है कि साइलिन जिनमें से अक्सर तादाद जो होती है बुजुर्गों और उसके साथ साथ खवातीन की भी होती है और यहाँ पर दफातर के अंदर और पब्लिक पॉइंट्स पर पब्लिक टॉयलेट्स का ना होना और पीने के पानी की सहूलत का ना होना उनके लिए काफ़ी मसाइल, अजियत और परेशानी का सबब बनता है। और इंतज़ामिया से अपील की जा रही है कि इन मसाइल पर फिलफौर एक्शन लेते हुए तमाम जो दफातर और पब्लिक पॉइंट्स हैं वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स के साथ साथ जो पीने के पानी की सहूलत है वो मुहैया की जाए। पब्लिक टॉयलेट्स को अरेंज किया जाए। बहुत शुक्रिया अजमत बलोच हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया की अजीब मंतक। दिन के औकात में अंडरपास में काम शुरू किया तो शहर भर में ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम हो गया। मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद महमूद, बताइएगा आवाम का इस पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया की जाम से अंडरपास का काम तो दिन के औकात में शुरू किया गया, लेकिन उसकी अजियत जो है वो आवाम को भुगतनी पड़ रही है कि अंडरपास को एक जो है बंद किया गया, जिसकी वजह से मेन जो तमाम शहरें हैं वो कई किलोमीटर तक जो है जैम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जिस तरह से आपको दूर दूर तक ट्रैफिक नजर आ रही है, जिसमें अगर बात की जाए तमाम जो लोग मोटरसाइकिल गाड़ियां समेत जो है अच्छे खासे लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं अंडरपास को काम के लिए बंद किया गया और इस दफा हर जगह पे आपको ट्रैफिक जैम नजर आ रही है? बात यह है कि अब स्कूल का टाइम था, ठीक है ना, रात को भी तो काम किया जा सकता था ना, तो बिल्कुल स्कूल के टाइम पे इन्होंने बंद किया है। ये सरासर रियाती और मुश्किलात में इजाफा किया जाता है हमारे। बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात भी सुनी, मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है और अच्छे खासे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ और भी लोगों से बात कर रहे हैं। आप भाई बताइएगा किस तरह समझते हैं अंडरपास को बजाय रात के काम करने के दिन में काम कर दिया, बंद कर दिया गया आवाम के लिए? ये मुश्किलात पैदा कर रही है और काफ़ी मुश्किलात है। इन्हें चाहिए था रात को काम करना। ये अच्छा, कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइएगा अंडरपास को बंद किया गया, दिन के औकात में काम किया जा रहा है और ट्रैफिक जैम हो चुकी है हर जगह से, क्या कहेंगे आप? हम यही कि यार ये क्या ये तब्दीली थे, हम तो खुद समझ के बाहर आके लो जी तब्दीली आएगी, रोड बनेंगे, ये बने, कुछ नहीं बना। अवाम को जलील खुआर के अलावा कुछ नहीं मिला। जी बिल्कुल, इनकी बात भी सुनी और आपको हर तरफ जो है आपको रोड बंद ही नजर आएंगे, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको दोनों अतराफ जो रोड है वो इसी तरह से ट्रैफिक जैम आपको नजर आ रही है, लेकिन इंतजामिया की जाम से किसी किस्म का कोई भी इकदाम नहीं किया जा रहा है और इंतजामिया की जान से जो है आज एक रोड जो है अंडरपास का सामना है। बहुत शुक्रिया, शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे। लेबर कोर्ट के हुक्म के बावजूद वासा मुलाजिम को मुलाजमत पर बहाल न करने का मामला, डायरेक्टर एडमिन, डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर तामीरात के वारंट जारी। अदालत का सीपीओ फैसलाबाद को वारंट की तामील करवाने का हुक्म। मुलाजिम पंप ऑपरेटर ने रेगुलर न करने पर लेबर कोर्ट से रुजू किया था। अदालत ने वासा मुलाजिम खलील अहमद तौकीर को रेगुलर करने का हुक्म दे दिया। आपको अपडेट करें, लेबर कोर्ट के हुक्म के बावजूद से डीसी ऑफिस चनियोट में इजलास हुआ। डीसी मोहम्मद रियाज और डीपीओ ब्लॉक शेख ने यहां पर सदारत की, जबकि इस वक्त इजलास में तमाम मकातब फिक्र के उलमाए किराम ने शिरकत की। डीसी और डीपीओ का कहना था कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम्स को मुकम्मल सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। इसी हवाले से बात करते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट राना अजहर नूर से। जी राना अजहर नूर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज एक अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात उलमा कराम से थी, क्योंकि रबीउल अव्वल के सिलसिले में बात करेंगे। सर, आपने और आज डीपीओ साहब ने मुलाकात की उलमा कराम से, रबीउल अव्वल की आमद है, तो क्या इक़दाम किए जा रहे हैं शहर में? जी, आज हमारी उलमा इकराम जैसे चिन्योट के मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ था, उनसे बड़ी तफसीली हमारी मीटिंग हुई है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में। उसमें जितने भी सिविल इंतज़ामिया के ज़िम्मे इंतज़ामात हैं, जिसमें मौका है या रूट्स हैं जहाँ पर मिलाद की और या बड़ी बड़ी इज्तिमात होंगे, उन सब का ऊपर जो इंतज़ामात हैं, जिसमें सिविल डिफेंस है, बम डिस्पोजल स्क्वाड है, 1122 का सेफ्टी कवर है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सर्विसेज हैं, उन सारों को हतमी शक्ल देने के लिए और सिक्योरिटी के हवाले से डीपीओ साहब ने डिटेल जो है सिक्योरिटी प्लान बनाने के लिए जो हमारे उलमा कराम की तरफ से इनपुट थी, वो आज हमें बड़ी अच्छी मिली है। हमारी कोऑर्डिनेशन आज से रबीउल अव्वल के हवाले से उसका आगाज़ हो गया। कल मैं ख़ुद भी मौके पे गया था जहां आज एक इजलास होना है इस सिलसिले में, तो इंशाल्लाह हमारे जितने भी यहाँ पर प्रोग्रामात होंगे रबीउल अव्वल के हवाले से इंशाल्लाह उनकी भरपूर हम तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। सर, एसओपी के बाद क्या करना जा रहा है, क्योंकि खतरात बढ़ते हैं कोरोना के वजह से, उसमें क्या करेंगे? जी, इसमें हमारे उलमा कराम खुद भी जो है वो काफ़ी सेंसिटिव थे, हमने भी उनको सेंसिटाइव किया है और वो उन सब का कंसेंसस था कि बिल्कुल एसओपीज़ को फॉलो करते हुए सारे इज्तिमात होंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि उनका मुलाकात अच्छी रहने तक कोशिश की जाएगी कि एसओपीज़ पर अमल किया जाएगा, कोशिश की जा रही है जितने भी इज्तिमात होंगे वहाँ पर तमाम सिक्योरिटी जाए और तमाम जो काम से कहा जाएगा कि वो भी ताउन करेंगे और इंतजामिया जो पूरी कोशिश करेगी कि तमाम। बहुत शुक्रिया राना अजहर नूर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
फेस्को हेडक्वार्टर्स में चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को अरशद मुनीर का फर्स्ट सर्कल से अहम इजलास में सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर फर्स्ट सर्कल ने फैसलाबाद शहर इलाकों सनती कनेक्शंस, घरेलू और कमर्शियल कनेक्शंस की रिकवरी की तफसीलात फेस्को चीफ को फराहम की। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस सलीद से। जी अवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फेस्को हेडक्वार्टर में चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को की जानिब से फर्स्ट सर्कल के अफसरान से अहम अजलास जो है उसका अहतमाम किया गया। अजलास में जो है वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फर्स्ट सर्कल और दीगर अफसरान ने जो है वो शिरकत की। फर्स्ट सर्कल के अफसरान की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को को जो है वो नए कनेक्शंस से मुतल्लिक जो है वो आगाह किया गया और बिजली चोरी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उससे आगाह किया गया और शहर भर में जो है वो डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन से जो रिकवरी की गई है उन मामला से भी चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को को आगाह किया गया। इस मौका पर CEO फेस्को अरशद मुनीर वड़ाइच का फर्स्ट सर्कल को जो है वो खिताब करते हुए कहना था कि सार्फिन के मसाइल जो हैं उनको जो है उनके फौरी अजाले को मुमकिन बनाया जाए और इसके साथ साथ जो नए कनेक्शंस लगने वाले हैं, जिन सार्फिन की जानिब से डिमांड नोटिस की फीसें अदा कर दी गई हैं, उनको कनेक्शन फराहम किया जाए। बिजली चोरी के खिलाफ जो कैंपेन है उसको तेज़ किया जाए। बिजली चोरों को न सिर्फ इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर जुर्माने किए जाएँ बल्कि उनके खिलाफ FIR का अंदराज जो है वो भी करवाया जाए और बिजली चोरों को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। रिकवरी में बेहतरी लाने के लिए डेट डिफाल्टर्स के खिलाफ जो है अब वो घेरा तंग किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अवैस अली, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में क्यूलियम मार्की वेस्ट कैनाल रोड में लगाए जाने वाले फर्नीचर एक्सपो की तैयारियां, शहरियों की बड़ी तादाद जदीद और नित नए डिजाइन्स का फर्नीचर देखने और खरीदने के लिए क्यूलियम मार्की में पहुंचेगी। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक्सपो कल से शुरू हो रहा है और इतवार तक जारी रहेगा। इस एक्सपो में शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत करने वाली है और ये एक्सपो जो है वो शहरियों के तवज्जो का मरकज़ बनने वाला है। इसमें नुमाइश के लिए रखे जाने वाले फर्नीचर के मुख्तलिफ कैटेगरीज जो हैं वो शहरियों के तवज्जो का मरकज़ बनने वाली हैं। बात हो ऑफिस फर्नीचर की, होम फर्नीचर की, आउटडोर फर्नीचर की, तमाम तर रेंज यहाँ पर मौजूद होंगी। नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर जो है वो एक्सपो में अपने अपने स्टॉल्स लगाएंगी और शहरियों के लिए ख़ास दिलचस्पी का जो सबब है वो ये भी होगा कि यहाँ पर 40% तक शहरियों को मुख्तलिफ चीज़ों पर रियायत भी दी जाएगी। मेरे साथ इस वक्त ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस एक्सपो के हवाले से क्या कहना है। मुझे बताइएगा, इस एक्सपो में क्या समझते हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिलने वाला है पब्लिक का? अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान नेशनल फर्नीचर एक्सपो की जानब से फ़र्नीचर एग्जीबिशन कराई जा रही है। हम लोग पूरे पाकिस्तान में फ़र्नीचर एग्जीबिशन करवाते हैं और ये भी हमारा आप कह लें कि आफ्टर कोविड थर्ड एक्सपो है फैसलाबाद में। तो टॉप 50 ब्रांड्स ऑल ओवर द पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अप टू 40% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं कस्टमर। और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर कोविड हमारा अदर सिटीज़ में तो बहुत अच्छा रहा है और हम पूरी उम्मीद हैं कि फैसलाबाद में भी हमें ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, मुझे ये भी बताएगा कि तमाम तर शहरियों के तवज्जो के लिए आपने मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इस एक्सपो में रखी हुई हैं। बच्चों के लिए भी इस फर्नीचर में कोई उनकी पसंद की या उनके उनके लिए कोई चीज़ ऐसी मौजूद है? बिल्कुल, बच्चों के लिए भी हमारे पास किड्स फर्नीचर में कुछ ब्रांड्स हैं जो अपना डिस्प्ले देंगे और ऑब्वियसली फर्नीचर की तमाम आप कह लें कि कैटेगरीज यहाँ आपको मिल सकती हैं। फर्नीचर की तमाम कैटेगरीज यहाँ पर मिल सकती हैं। बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, ऑफिस की बात हो, घर की बात हो, आउटडोर फर्नीचर की बात हो, तो आप इस एक्सपो में पहुँच सकते हैं। और आपको सोने पर सुहागा ये है कि 50 कंपनियों के फर्नीचर जो हैं वो यहाँ पर एक साथ देखने को मिलेंगे, एक ही छत तले देखने को मिलेंगे। और उस पर दूसरी बात ये है कि 40% तक आपको इस पर रियायत भी मिल सकती है। तो फिर इस फर्नीचर एक्सपो में पार्टिसिपेट कीजिए, यहाँ पर पहुँचिए और अपनी मनपसंद का फर्नीचर जो है वो रियायती दामों खरीदिए। अपनी मनपसंद का फर्नीचर जो है वो यहाँ से खरीदिए। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।